Namaste Muniji. Namaskar. We shall start with a small prayer. Asato mam sadgamaya tamaso mam jyotirgamaya mrityormam amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. It's my privilege, Swamiji, to welcome you. Paramadaraniya Munishri Pranamya Sagar ji, a great saint. आप Arham Dhyan Yoga on behalf of Ministry of Ayush Government of India and also on behalf of Morarji Desai National Institute of Yoga. It is from my proud privilege to welcome you for this discourse. So I am also thank you very much for taking your some time to educate our youths and give your blessings on the eve of International Day of Yoga. Arham Dhyan Yoga is a Dhyan Yoga based on ancient Shamana practices, simplified and made accessible to commoners. It effectively regenerates body, mind and soul while providing a complete package for the physical, mental, emotional and spiritual well-being. Being a Dhyan Yoga, it primarily focuses on meditation while incorporating various aspects of Ashtanga Yoga like asana, pranayama, pratyahara, etc. Arham Dhyana Yoga is being fostered by Munishri Pranamya Sagar ji, a great disciple of Acharya Shri Vidyasagar ji, one of the most senior and respected saints in the today's time. He is known for his immense knowledge and ascetic practices. Munishri ji himself has been a yogi and practicing it for more than 23 years. He is a scholar in Hindi, Sanskrit and Prakrit. He strongly believes that only youth has the potential to change the future of this country. Today's youth is burst conversating with the outer world, leading to a feeling of incompleteness. Therefore, Munishri will be blessing us with the ability to conversate with the self, leading to a feeling of fullness. The inner world and outer world, both are very important. If anything is incomplete in outer world or inner world, so we are incomplete. We are very fortunate to have Muniji with us to enlighten us in the journey of inner self. I request Muniji to give his discourse and enlighten our youth. Muniji. वैज्ञानिक युग में सभी युवा भाई अपने अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और अपने कैरियर को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए भी तरह तरह से विचार करते हैं, सोचते हैं। जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब पाने की कोशिश की जाती हैं और सभी किया करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस भौतिकवाद में अपने मन को, अपने समय को किन किन चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। मन के अंदर
एक बहुत बुरी आदत होती है, हर चीज़ को एक्सेस में चाहता है, और मन के अंदर कभी भी एक चीज़ तो होती नहीं कि उसको कभी सेटिस्फैक्शन हो जाए। सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ आवर माइंड, इट्स ए क्वालिटी ऑफ आवर सोल। अगर आज का युवा इस चीज़ को समझने लग जाए कि मन और मैं के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, जो मन है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मन मैं के ऊपर हावी होता है, और जो मैं हूँ वही मैं हूँ, लेकिन मैं को वो मन पहचानने नहीं देता है। तो इस मन और मैं के बीच का अगर हम थोड़ा सा गैप बना करके इन दोनों के हम कैरेक्टर को समझने लग जाएंगे, तो हम बहुत कुछ इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को बहुत स्वस्थ और खुश रख सकेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आदमी कभी भी इस दुनिया में सोचते सोचते अपने मन को किसी भी स्थिति में दौड़ाते दौड़ाते मन की शांति के लिए कभी कुछ नहीं करता। और जब तक मन में शांति नहीं आएगी, उसका अपने मैं से परिचय नहीं होगा, अपने अस्तित्व से परिचय नहीं होगा। अपना एग्जिस्टेंस, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, वही मेरा ट्रू एग्जिस्टेंस है, उससे उसका कभी भी परिचय नहीं होगा। और जब वह परिचय हमको होगा, तब हमको जो तृप्ति होगी, जो सेटिस्फैक्शन होगा, वो हमारे लिए हमारा भीतरी एक हमारा, जिसे हम कहते हैं इनर ब्लिस, वो हमारा एक परम आनंद होगा। और उस आनंद को जो व्यक्ति एक बार महसूस कर लेता है, तो उसे लगने लग जाता है कि ये सब जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, इनकी दौड़ हमारे लिए केवल भटकाने वाली है। और ये तब होता है जब मन शांत हो। तो आज की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति के लिए जब वो अपने दिन की शुरुआत करता है, उस समय पर वह जिन जिन स्थानों से गुजरता है, जिन जिन परिस्थितियों से गुजरता है, जिन जिन वातावरण से अपने आप को गुजारता है, और जहाँ उसको लगता है कि जिस स्थान पर हमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें जिस स्थान पर लोगों से मिल करके, बातचीत करके या काम करके सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्बेंस होता है, उसी स्थान पर आपको एक टेक्निक अपनानी पड़ेगी कि हम उसी जगह पर अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ी सी एक अलग बात बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर योग और ध्यान में आपको बताया जाता है कि आप सुबह उठ करके अच्छा योग करें, ध्यान करें। आपका मन अगर सुबह शांत है तो दिन भर शांत रहेगा। प्रैक्टिकली ये बात मुझे जमती नहीं है। प्रैक्टिकली तो यह है कि अगर आपने सुबह योग किया है, ध्यान किया है, तो वो एनर्जी आपकी दिन भर रहे जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने किसी भी तरीके के आउटर एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालेंगे, उस समय पर आपको फिर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप उस समय पर अपने अंदर अपने मन की शांति बनाए रखें। और वो मन की जो शांति है, वो मन की शांति तब आ सकती है जब आप उसी परिस्थिति के बीच में अपने आप को समझने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करें। ज़्यादातर लोग घर के एकांत में प्रैक्टिकल करते हैं। एकांत के प्रैक्टिकल दिन भर काम नहीं आते हैं। प्रैक्टिकल आपको उन्हीं लोगों के बीच में करना है जिन लोगों के कारण से आपको परेशानी हो रही है। जिस बॉस के सामने बैठ करके आपको इरिटेशन होता है, जिस बॉस की बातों से आपको परेशानी होती है, जिन फैमिली के लोगों से आपके लिए परेशानी पैदा होती है, आपको वहीं प्रैक्टिकल करना है। कहीं सुबह आप पार्क में प्रैक्टिकल कर लिए, सुबह योग कर लिए, ध्यान कर लिए, ये जरूरी नहीं कि शाम तक आपका इमोशंस, आपके थॉट्स उसी तरीके से काम और कूल बने रहें। संभव नहीं, क्योंकि मन जहां जाता है वो उसी चीज में बिल्कुल इंडल्ज हो जाता है। ये मन की एक और बड़ी चीज है। तो मन को शांत करने के लिए एक छोटी सी टिप आपको बताता हूं कि जिस स्थान पर आपको लगे, जिस व्यक्ति के साथ आपको लगे कि इस व्यक्ति से हमको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब जब इनके बीच में हमारा कोई कन्वर्जेशन होता है, तब हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो हमें उसी के सामने अपने आप को शांत बनाने की कोशिश करना है। क्या करना है आपको? करना यह है, आप एक गहरे मौन की अवस्था में आओ। क्या बोला मैंने? डीप साइलेंस। जब मन गहरे मौन की अवस्था में होगा, तब मन अपने आप शांत हो जाएगा। आप कुछ भी बात मत करो,
सामने वाला आपसे बात कर भी रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि हमारे लिए इसकी बात का कोई भी प्रभाव हमारी शांति पर ना पड़े, हमारे किसी भी प्रकार के माइंड के बैलेंस को हम डिस्टर्ब ना करें, तो आप एक साइलेंस के मोड में अपने मन को डाल दो, डीप साइलेंस। अगर आप 2 मिनट से 5 मिनट भी उस एनवायरमेंट में अपने आप को डीप साइलेंस की पोजीशन में ला पाए, तो उसके बाद 5 मिनट के बाद जब आप बाहर आएंगे, तो उस समय पर आपके अंदर से जो निकलेगा वो कभी आपके लिए खतरनाक नहीं होगा, गलत नहीं होगा, वो आपको कभी भी डिस्टर्बेंस आपके माइंड को देने का कारण नहीं बनेगा। सिर्फ मौन रखना, उसी समय पर आपको भीतर से जो उत्पन्न होगा वह आपका वास्तविक सुख होगा। और उसके बाद में जो आप बोलोगे वो शब्द नहीं होंगे, वो ब्रह्मास्त्र होंगे, ब्रह्म बाण बनेंगे। आप जो बोलोगे वो 100% होएगा। समझ आ रहा? जो लोग ज्यादा बोलते रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी से बोलने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमेशा अपना व्यवहार बनाने की कोशिश में अपने आप को एक टॉकेटिव नेचर में ढाल लेते हैं, कुछ नेचर होते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी अपने आप से बात करने का टाइम नहीं मिलता। और जब तक हम अपने आप से बात नहीं करेंगे, अपने आप में शांत नहीं होंगे, तब तक हम दूसरे को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं, लेकिन हम भीतर से कभी भी अपने आप को एक तृप्ति और संतोष के मोड में नहीं ला सकते। तो ये स्थिति वही होती है कि हम दुनिया के लिए तो रेवड़ी बांट रहे हैं और हम ही भूखे हैं। समझ आ रहा है? और ये ऐसा हर एक युवा के साथ हो रहा है। आज आपको बताया जाता है किसी से मिलो जुलो तो बात करो, है ना, उनके जो है नहीं भी बात आती है तो कुछ ना कुछ बात उनसे करना सीखो, ताकि आपके अंदर का हल्कापन आएगा, आपके उनसे रिलेशन बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये चीजें भी अगर एक्सेस में होने लग जाती हैं तो ये भी अपने लिए खतरनाक हो जाती हैं। आपको टाइमली दिन में कम से कम 3 से 5 बार आपको इस प्रैक्टिस में 5-5 मिनट की प्रैक्टिस में अपने मन को ढालना पड़ेगा कि मैं आज दिन में 3 बार 5 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट रहूंगा। तो इसलिए उस साइलेंस के माध्यम से ही आप ढंग से सुन सकते हो। लिसनिंग पावर जो आती है वो साइलेंस होने के प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपना आत्मिक सुख चाहते हो, भीतर कोई एक चीज है जो हमको तृप्ति देती है, तो आप आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 24 घंटे होते हैं और उसमें केवल आपको 5 मिनट आप शुरुआत करें, 2 मिनट से करें, कोई मैटर नहीं, 3 मिनट से करें, लेकिन आप उसमें अपनी खुद प्रैक्टिस बना लें कि मुझे आज 3 बार 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस होना है। ऐसे होना है जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है और उसके बाद में वो शोक सभा मनाई जाती, तो आपसे कहा जाता है कि 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस हो जाओ। समझ आ रहा है? बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक की प्रैक्टिस बनाना है। और आप देखोगे कि अगर आप ऐसा करने लग गए तो आप जिस वातावरण में खड़े हो उसी वातावरण में आपके लिए भीतर से अपने आप लड़ने की क्षमता आएगी, उस वातावरण को फेस करने की क्षमता आएगी और उस वातावरण से आप आसानी से गुजर जाओगे। आपके ऊपर वो वातावरण हावी नहीं होगा। जानते हो ये डिप्रेशन क्यों होता है? ये आउटर प्रेशर इतना ज्यादा माइंड के ऊपर आ जाता है कि जब माइंड उसको एफोर्ड नहीं कर पाता है तो वही जो है माइंड प्रेस होकर के डिप्रेस का शिकार बन जाता है। मन और आपके भीतर जो आपकी सोल, जिसे हम अपनी चैतन्य आत्मा कहते हैं, जिसे हम कॉन्शसनेस से भी समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। और जो हमारे ही सोल का कैरेक्टर है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इनर ब्लिस, ये हमारे सोल की क्वालिटी है, मन की क्वालिटी नहीं है। मन तो केवल आपको भटकाता है, तृष्णा पैदा करता है, डिजायर्स पैदा करता है। समझ आ रहा है? और जितनी जितनी डिजायर्स में हमारा मन पहले उलझ जाता है, वो फिर मकड़ी की जाल की तरह फिर वो उसी में उलझ करके अपनी जान भी गंवा देता है। और या फिर जो है किसी ना किसी तरीके के
अत्याचार, किसी ना किसी तरीके के पाप, किसी ना किसी तरीके के आतंक इनके रूप में उभर के आता है। ये जब हमारे अंदर आने लग जाते हैं तो ये समझ लेना कि दुनिया में पाप बाहर से नहीं फैल रहा है, आदमी के अंदर से फैल रहा है। और जितना पाप करने की ऊर्जा आज हमें दिखाई दे रही है वो सब युवाओं में दिखाई दे रही है, क्योंकि युवाओं में ही वो ऊर्जा होती है जो सबसे ज्यादा पाप कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा पुण्य भी कर सकते हैं। अगर दिमाग सही चले तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में इस विश्व को एक नई राह पर ले जा सकते हैं। अपने देश, अपनी समाज, अपने घर, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर वो ऊर्जा सारी की सारी नेगेटिव हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो अपना भी घात कर लेंगे, अपने परिवार के लोगों का घात कर देंगे, अपने देश के लिए घात के कारण बन जाएंगे और आतंकवादी दस्तावेज के रूप में कई लोगों के लिए भी घात का कारण बन जाएंगे। ये सब कहां से आता है? सब हमारे भीतर मन के ही इस प्रकार के जो विचार होते हैं और मन को जो संभालने की हम कोशिश नहीं करते हैं, उसी के यह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के एक्सप्लोजन हमें दिखाई देते हैं। आज दुनिया में आप देख रहे हो किसी भी तरीके के पाप हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और बहुत सारा धन वैभव की इकट्ठा करने की आकांक्षा, परिग्रह, ये सारे के सारे जो पाप हैं, ये सब पाप हमारे मन के माध्यम से ही हो रहे हैं और सबसे ज्यादा युवाओं के माध्यम से ही हो रहे हैं। शरीर में जैसे ही हमारी बायोलॉजी बदली, हमारे मन की भी बायोलॉजी बदल जाती है। शरीर युवा हुआ तो मन के अंदर भी एक युवा जैसी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। इन युवाओं को यह पता होना चाहिए कि हमारा सारा का सारा चिंतन इस बात में घूमना चाहिए कि हमें 5 पापों में कम से कम अपने आप को इन्वॉल्व करना है। उन चीजों का प्रयोग करो जिसमें कम से कम हिंसा होती हो, जीवों को मारा जाता हो, हिंसा। उन चीजों के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाओ जिसमें कम से कम झूठ बोला जाता हो। उस बिजनेस को करो, उस सर्विस में जाओ जिसमें कम से कम झूठ बोला जाता हो। उस तरीके की अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करो, वो प्रोडक्शन करो जिसमें कम से कम चोरी होती हो। मैं यूं नहीं कह रहा कि एकदम से बंद हो जाएगी, एकदम से कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये अपने अंदर एक थिंकिंग बना करके रखो, कम से कम अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हमें इस प्रकार की जॉब में ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, ज़्यादा हमें फ्रॉड करना पड़ता है, और इस प्रकार की अगर हम जॉब करेंगे तो इसमें कम करना पड़ेगा, तो आपको वो कम वाली जॉब, कम झूठ बोलने वाली और कम चोरी करने वाली जॉब को चूज कर लेना चाहिए। भले ही आपको उसमें पैसा कम मिले, लेकिन वो पैसा आपको बहुत दिनों तक संतुष्टि देगा और बहुत दिनों तक आपके पास में रहेगा। एक चाणक्य की नीति है, अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष से ज्यादा नहीं रहता, 11वें वर्ष में कहीं ना कहीं जरूर विलीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर आपने धन को न्याय के साथ कमाया है तो वो आपके साथ रहेगा और लंबे समय तक रहेगा, और जब तक आपका जीवन है तब तक आपका साथ देगा। तो आज व्यक्ति को ये नहीं मालूम है, हमें धन कमाने की तो पड़ी है, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने की तो अपने अंदर एक जज्बा है, लेकिन कैसे करना, तो उसके लिए हमें ऋषियों मुनियों ने चीजें बताई। 5 पापों में अपना इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखो। ऐसे कोई भी जॉब, ऐसे कोई भी बिजनेस मत करो जिसमें हिंसा बहुत ज्यादा होती है, झूठ बहुत बोलना पड़ता है, चोरी बहुत करनी पड़ती है। कुशील के भी बहुत सारे जॉब चलते हैं, इसके भी लोगों ने बिजनेस बना रखे हैं। ये सब कभी भी लोगों को संतुष्टि देने वाली चीजें नहीं है। पैसा कमा सकते हैं, लेकिन भीतर से सबके अंदर भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। सब हमेशा कोई हमारा भेद ना खोल दे, कहीं हम पकड़े ना जाएं, 1 मिनट में धुल जाती है। इस डर के कारण से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब पाप के कारण से ही होता है। और परिग्रह जिसको बताया गया, 5वां पाप, इतनी चीजें रखो जिससे हमारा घर, हमारे घर के लोग, परिवार, सबकी जरूरतें पूरी हो जाएं। अच्छी से अच्छी चीजें रखो। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आउटडेटेड हो रही हैं तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। आप हर चीज को अपने लिए एक लिमिट में ले आओ। तो इन 5 पापों की लिमिट अगर आज के युवाओं के अंदर एक कॉन्शियसनेस में आ जाए कि मुझे ऐसा करना है, तो दुनिया में कोई पाप बचेगा ही नहीं।
और जो बचेगा वो सिर्फ इतना ही होगा कि वह बहुत थोड़ा सा पाप रह जाएगा, जिसका विनाश तो आप कभी भी उतने साधु संतों की संगति में आकर के कर लेंगे, क्योंकि कहा गया है कि सत्संगति करने से भी आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं दूसरी जगह स्वर्ग खोजने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग यह देश बन सकता है, यह विश्व बन सकता है। केवल युवाओं में इतना सा करना है कि हम अपने मन को इन 5 पापों की डिजायर्स में कंट्रोल रखें। आप देखेंगे, आप लंबे समय तक बात करते हुए कभी भी ये नहीं सोचेंगे टाइम कितना हो रहा है, लेकिन अगर आप 1 मिनट 2 मिनट शांति से बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा कि टाइम कितना भारी हो रहा है। क्या समझ आ रहा है? जबकि हम सुबह से शाम तक कितनी मिनट्स खराब करते रहते हैं गपशप करने में, इधर उधर की हंसी मजाक करने में, टिकटॉक देखने में, फेसबुक देखने में। लेकिन अगर हम केवल 2 मिनट शांति से बैठने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि ये 2 मिनट कितना भारी होता है। मन भारी हो जाएगा। मन भारी इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब आप मन के खिलाफ काम कर रहे हो, अब आप अपने मैं के लिए काम कर रहे हो। और तो जहां मन को ये लगने लग जाता है कि अब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर इसे अपने मैं का पता चल जाएगा तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर मन आपको कुरेदने लगता है। आगे बोलो, बोलो, सामने देखो। मन आपको इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है। समझ आ रहा है? ये चीजें हर व्यक्ति को भीतर से समझ लेना चाहिए। मन हमारा क्या कह रहा है? आत्मा की आवाज जो हम सुनते हैं, आत्मा की आवाज आती है, वो आत्मा की आवाज हर किसी को नहीं आती है। आदमी को यही पता नहीं है कि हमारे डेस्टिनी में किस तरफ जाने के लिए, कौन सी लाइन पर चलने के लिए हमारी आत्मा की आवाज कह रही है, क्योंकि उसने कभी आत्मा की आवाज तो सुनी नहीं। मन की आवाज से काम करता रहा, और मन की आवाज के भी से भी ज्यादा कभी पापा की आवाज आती रही, मम्मी की आवाज आती रही, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आईएएस कलेक्टर बनना है, तुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। तो हम उन्हीं की आवाज सुनते रहे और मन की आवाज सुनते रहे। कभी हमने अपनी आवाज तो देखी नहीं, और हम जहां जाकर के खड़े हो गए उसके बावजूद भी जब हम देखते हैं अपने आप में तो कुछ अचीव तो कर लिया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। इस लाइन पर ही हमें आना चाहिए था, इस लाइन पर ही हमें मिलना चाहिए। तो आत्मा की आवाज जो व्यक्ति सुनकर के अपना कैरियर बनाता है, उसके लिए उसका कैरियर अपने आप बनता चला जाता है। उसका भाग्य उसका साथ देता है। उसके पुरुषार्थ में जब उसके भाग्य दोनों साथ देने लग जाते हैं, पुरुषार्थ और भाग्य, तो अपने आप उसको बहुत लेस एफर्ट में फुल सक्सेस होता है वो। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आध्यात्मिक बात है, इसको आप सीखें। जब तक आप अपने अंदर इस स्पिरिचुअलिटी का भाव नहीं लाएंगे कि हमारा पुरुषार्थ हमारे अपने भाग्य के साथ अगर काम करेगा तो हमें संतुष्टि मिलेगी और सफलता मिलेगी, तब तक आप कभी भी सही तरीके का डिसीजन ले नहीं सकेंगे। और अगर आपने ये सीख लिया कि हमें आत्मा की आवाज सुनना है, आत्मा की आवाज सुनकर के ही हमें अपना डिसीजन बनाना है और डिसीजन लेकर के हमें चलना है, तो आप सक्सेस होते चले जाओगे। तो हमारा सभी युवाओं से यही कहना है, आत्मा की आवाज सुनो। समझ आ रहा है? वो कब सुन पाओगे? जब मन की आवाज शांत होगी। और मन की आवाज शांत करने का तरीका क्या है? तो मन को एक गहरे मौन की स्थिति में अधिक से अधिक लाने की प्रैक्टिस करो। ऐसी फीलिंग के साथ में जब 2 मिनट के मौन की आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और वो अगर आपने दिन में कभी भी 3 बार 2 बार करने की अपनी प्रैक्टिस ढाली, फिर आप देखो आपको सक्सेस आगे मिलती चली जाएगी। पापों की दर, पापों का स्तर जबरदस्ती किसी के लॉकडाउन कराने से भी कम नहीं होता। समझ आ रहा है? जबरदस्ती किसी को घर के अंदर रखने से भी कम नहीं होता। ये कम होता है अपने मन से बातचीत करने पर, अपने आप से बातचीत करने पर, अपने आप को समझने पर और अपने आप को समझाने पर। तो पहला काम हमें मौन की प्रैक्टिस करना। और दूसरी चीज होगी कि जब हम इस तरह से अपने आप को मौन की स्थिति में ले जाने की प्रैक्टिस में ले आए, तब हम
अगर फिर हमारे पास में और समय मिल सके 5 मिनट का, तो आप अपने आप से बात करें। अपने आप से बात कैसे बात करें? ऐसे करें जैसे मैं बताता हूं। सुन रहे हैं ना सभी लोग? देखो, अपने आप से बात करें, मैंने जिंदगी में कहां से अपना जीवन शुरू किया, मुझे क्या याद है जब से कि मैं था। मेरा जीवन उससे पहले भी था, और उससे पहले भी था, उससे पहले भी था। मैं अगर माँ के गर्भ में था तो माँ के पेट के अंदर भी रहा था, और वहाँ पर भी मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 1 महीने, 2 महीने नहीं, 9 महीने तक रहा हूँ। तब मेरे अंदर कितनी इच्छाएं थीं, तब भी मैं था। आज मैं धीरे 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 इतना बड़ा हो गया हूँ। मेरी इच्छाएं कितनी फैलती जा रही, कितनी फैलती जा रही, कितने लोग, कितने संबंध, कितने लोगों के कारण से मेरे अंदर तनाव, ये सब चीजें मुझे कभी गर्भ में नहीं हुआ। सागर में पानी जितना होता है उससे ज्यादा तरंगें उत्पन्न होती हैं, और उन उत्पन्न हुई तरंगों का कभी भी अभाव नहीं होता। जैसे जैसे हवा लगेगी तरंग उत्पन्न होगी। वैसे ही जैसे जैसे मन को बाहरी चीजें दिखाई देती हैं, मन को उस चीज को ग्रहण करने की, पकड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। हमें देखना है कि ये मन की इच्छा का कोई अंत नहीं है। और जब हम इस तरह के शांत बना करके बैठ जाएंगे, गहरे मौन में चले जाएंगे, आपका ये 5 से 10 मिनट का ध्यान आपके जीवन को बदल देगा। अरहम योग ध्यान का मतलब ही होता है, अरहम माने आपके अंदर की छुपी हुई संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, वो सब आपके अंदर उभरती चली जाएं। अरहम माने योग्यता। अपनी योग्यता को बढ़ाओ। मेरी आत्मा मुझसे क्या कह रही है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सा जॉब करना है, मुझे कौन सा प्रोफेशन करना है, किस तरह की लाइन में मुझे इन्वॉल्वमेंट लेना है, ये आपकी आत्मा जैसी कहेगी वैसा आप करोगे तो आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन भी होगा और सक्सेस भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक डे ही फिक्स कर दिया है 21 जून का, हाँ? और आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्यक्रम योग और ध्यान का बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ये इसीलिए प्रशंसनीय है कि ये आज हमारी युवाओं को भटकती हुई राह से एक सद राह पर लाए, और आप सबका जीवन सफल हो। इन्हीं आशीर्वाद के साथ में हम ये अपना जो ये वक्तव्य था उसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुनि जी फॉर योर एनलाइटनिंग स्पीच एंड इट्स अ डिस्कोर्स। आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हियर यू and it's a great opportunity for all our yoga lovers, and you have given a great message and new path on behalf of ministry and on my own behalf. So once again I thank you very much, and I hope so in the future also we get your guidance. Om Shanti Shanti Shanti.